Ji, Assalamu alaikum to all the students. So today in our last lecture we started up with the structures of the oral tissues, and we were discussing the different types of hard and soft tissues that are present within the oral cavity. Started up with different components of the tooth, in which we studied the enamel, dentine, pulp, periodontium, that includes all the supporting structure that are cementum, alveolar bone, and the periodontal ligaments. Yeah. So today I will just like to go through and revise a small section of enamel so that you can understand a very the basic structural unit of enamel that is very important for you to know. ठीक है, बाकी सारी जो इसकी डिटेल है वो आप चैप्टर 7 में ही पढ़ोगे. ठीक है. So regarding enamel, we all know it is the outermost and the strongest hard tissue that is present within the oral region and also in the whole body. Most mineralized, consisting of 96% inorganic material, 4% of it is organic material that also includes water. And then when we come to discuss the development, that how the enamel is going to develop, so the basic cells that are involved in development of enamel, these are the ameloblasts. ठीक है. And the development of this enamel, this starts once the first layer of dentine has been laid down. The development of this structure, that is enamel, it is going to start after the dentine, but it is completed before the completion of whole of the dentine. ठीक है. ठीक है. So the loss of aminoblasts renders enamel non-vital and insensitive. इसका क्या मतलब होता है कि once the enamel is completely formed, तो आप देखेंगे आप अगर जिन्होंने चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है enamel का, उसमें वो देखेंगे जब maturation complete हो जाती है, then you will see that enamel sorry, the ameloblasts, they undergo apoptosis. ठीक है. So once the cell has gone, the enamel becomes non-vital, that you cannot feel any sort of sensation in that, and it is going to be insensitive. Then again, the last point we discussed was that it can't be regenerated, because for regeneration what we need is कि जिन cells ने इनको basically develop किया होता है वो present हों. ठीक है. So this is what you call regeneration, that you start the development of a structure from its very basic. ठीक है. जिस तरह से अगर आप डेंटिन में देखें तो द ओडोंटोब्लास्ट दे डू नॉट गो अंडर एपोप्टोसिस, दे रिमेन इवन आफ्टर द डेंटिन हैज completely developed. So there is some sort of dentine that can basically be formed even after the dentine is completely developed. ठीक है. इन केस ऑफ एक इसका दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसको आप कहते हैं रिपेयर ऑफ एनामल. ठीक है. दैट रिपेयर ऑफ एनामल, उसके बारे में रिपेयर ऑफ एनामल के बारे में दो चीज़ें आपने याद रखनी. ठीक है. एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिपेयर भी होता है ओरल कैविटी में, वो किस तरह से होता है वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन वंस यू आर डन विद द होल ऑफ द कोर्स. ठीक है. क्योंकि अभी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने बेसिकली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिपेयर ऑफ एनामल कैसे होता है वो आपने पढ़ना है. सेकेंड जो टाइप ऑफ एनामल रिपेयर है, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा होता है. यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग मटेरियल्स टू रीजनरेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. अब जैसे कि इनेमल को अगर आप देखेंगे कभी भी अगर केरीज हो जाए तो दैट पर्टिकुलर पेशेंट, व्हाट दैट पेशेंट विल डू, ही विल गो टू द डेंटिस्ट. डेंटिस्ट क्या करेगा कि उस केरीज या डैमेज पार्ट जो है इनेमल का उसको रिमूव कर देगा, या उसको रिमूव करके वहाँ पे एक आर्टिफिशियल मटेरियल को प्लेस कर देता है. सो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फिलिंग वो इनेमल जो है वो वक्ती तौर पे आप उसको फंक्शनली यूज में भी ला सकते हो। सो दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज रिपेयर्ड, ठीक है, और आर्टिफिशियल रिपेयर। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिपेयर कैसे होता है इस वक्त के लिए आप याद रखें कि दैट थिंग इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल वी विल डिस्कस व्हेन यू आर डन विद द होल ऑफ द कोर्स, ठीक है। अभी अगर इस चैप्टर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिपेयर और रिपेयर थ्रू removal of damaged enamel surface and replacing it with an artificial material is possible. Its regeneration is not possible. ठीक है। फिर आप अक्सर जो इनेमल का पढ़ा होगा, इवन जिन्होंने चैप्टर 7 भी पढ़ा, उसमें लिखता है जी इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, हाईली मिनरलाइज भी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। किस तरह से है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन? इस तरह से है क्योंकि इनेमल क्रिस्टल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इनेमल रॉड, ठीक है। तो इनेमल रॉड ही होता है बेसिकली द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द इनेमल। जिस तरह से आप सेल को कहते हो ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, उस तरह से इनेमल रॉड जो होता है इट इज द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ इनेमल दैट इज हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है। और उसी के साथ जिस जिस तरह से जब आपको पता है कि इनेमल की मैट्रिक्स ले डाउन हो रही होती है बाय द अमीलोब्लास्ट सेल, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स किस तरह से ले डाउन हो रही होती है कि जो आपके अमीलोब्लास्ट हैं वो इनेमल रॉड और इंटर रॉड को ऑल्टरनेटिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले जैसे एक लेयर इनेमल रॉड की, उसके बाद इंटर रॉड फिर इंटर रॉड, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्स सिक्रीशन जो होती है बाय द अमीलोब्लास्ट, इसकी वजह से इसको कहा जाता है कि इनेमल हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी आप जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें आप देखोगे जी कि पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ले हुई, कोलेजन फाइबर्स मेच्योर हुए और उसके बाद मिनरलाइजेशन होगी। इसमें क्या हो रहा होता है कि एमिलोब्लास्ट जो हैं थ्रू देयर ट्रूम्स प्रोसेस इनेमल रॉड और इंटर रॉड को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब इनेमल रॉड और इंटर रॉड आप इनेमल के स्ट्रक्चर में किस तरह से देख सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यू सी दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ टच, ठीक है। इसमें बिल्कुल वाइट कलर का जो है वो इनेमल नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये जो दो ब्लैक लाइंस हैं, जब जब इस तरह से इनेमल को काटते हो ना, यू कट डाउन दिस पोर्शन ऑफ इनेमल और इनेमल फ्रॉम एनी पोर्शन, इसको आप कहते हो दैट यू हैव कट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनेमल, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ इनेमल को आपने क्यों काटा है? क्योंकि आपने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज इनेमल रॉड, उसको आपने देखना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके लिए क्या किया आपने, इतना हिस्सा इनेमल का काट लिया। अब इन ऑर्डर टू सी द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड इंटर रॉड इनेमल, आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस जो स्ट्रक्चर आपने कट किया एनिमल का, उसका एसिड ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो एसिड ट्रीटमेंट जो आप करते हो दैट इज नोन एज द एसिड एचिंग, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर 7 पढ़ा है उन्होंने ये टर्म पढ़ी होगी एसिड एचिंग। तो एसिड एचिंग क्यों ज़रूरी होती है? ताकि आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रॉड और इंटर रॉड के स्ट्रक्चर के दरमियान फ़र्क क्या है वो आप क्लियरली देख सकें। तो इनेमल एचिंग क्या होती है? जब भी आप इनेमल के ऊपर एसिड एक कट सेक्शन के ऊपर या क्रॉस सेक्शन के ऊपर एसिड उसका ट्रीटमेंट करते हो, तो उसका सरफेस ऑब्वियसली जो एसिड है वो क्या करता है कि इनेमल के स्ट्रक्चर की इरोजन कर देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिसॉल्व करेगा। अब इनेमल के वो एरियाज जहाँ पे इनेमल रॉड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो और इंटर रॉड के दरमियान आपको फर्क इसलिए नजर आता है क्योंकि ज्यादातर जो इनेमल रॉड के एरिया के क्रिस्टल्स होते हैं वो उस एसिड को रेजिस्ट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द इनेमल इंटर रॉड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इनेमल रॉड और इंटर रॉड के स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टल्स पड़े होते हैं उनकी ओरिएंटेशन फर्क होती है, ठीक है। इस वजह से इनेमल रॉड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसको रेजिस्ट एसिड की जो
ट्रीटमेंट होता है उसको रेजिस्ट कर जाते हैं। बाकी जिन एरियाज के ऊपर जो है वो एसिड ज़्यादा डिसोल्यूशन करता है, वहाँ से इनेमल का उतना उतना स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एसिड ट्रीटमेंट करते हो ना इनेमल का और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द इनेमल रॉड एंड इंटर रॉड और बेसिकली द इनेमल रॉड इट लुक्स लाइक आफ्टर द एसिड ट्रीटमेंट। अगर एसिड ट्रीटमेंट ना किया हो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से क्लियर कभी विजिबल नहीं होता। इन दोनों इमेजेस में फर्क ये है कि जिसके नीचे मेजरमेंट्स लिखी हुई है ना, वो बेसिकली ज्यादा मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, द वन ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड इट इज लेस मैग्नीफाइड। अब इस पिक्चर में समझाने की चीज ये है कि बेसिकली इसको अगर आप गौर से देखो ना स्ट्रक्चर को, तो आपको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसका विजिबल नजर आता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ हनी कॉम्ब। ठीक है, शहद की मक्खी का जिसको छत्ता कहते हैं ना, उसकी अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या चीज नजर आ रही है कि इसके एक तो बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं आपको जो कि बड़े उभरे हुए हैं, प्रोमिनेंट है। ठीक है, और उसके अंदर से जो कुछ हिस्सा है वो पार्ट है जो बेसिकली जिसके ऊपर एसिड ने ज्यादा एक्ट किया है और वहां पे थोड़ी सी डेसोल्यूशन हो गई। फर्क ये होता है बेसिकली कि जो बॉर्डर के ऊपर रीजन है इनेमल रॉड का, वहां पे और जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वहां पे एसिड जो रिएक्टिव इसलिए हो गया कि क्रिस्टलाइट्स की जो पोजीशन होती है इनसाइड द इनेमल रॉड स्ट्रक्चर वो डिफरेंट एरियाज के ऊपर फर्क होती है। ठीक है, अब इसमें समझाने की चीज आपको ये है कि ये आप सर्कल देखें। ठीक है, दिस होल स्ट्रक्चर इज बेसिकली हेक्सागोनल क्रिस्टल, जिसको कि आप इनेमल रॉड कहते हैं। ठीक है, इसकी ये एक आउटर बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये किसका सेंटर वाला पोर्शन है जहाँ पे रिजॉर्प्शन ज्यादा हुई हुई है। सो ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज बेसिकली ए इनेमल क्रिस्टल और इनेमल रॉड भी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको ये एक और इसका इमेज दिखाता हूँ। द इमेज दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ब्लू और वाइट कलर में। ठीक है, अब इसका आप देखो कि ये पूरा उसने ब्लू वाला जो एक पूरा क्रिस्टल बाहर निकाल के शो किया हुआ है 3D इमेज। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इनेमल रॉड। ठीक है, उसकी रफली हेक्सागोनल शेप होती है। ठीक है, अब इसका अगर आप सेक्शन देखें तो उसने दो इसके डिफरेंट पोर्शंस लेबल किए हुए हैं। ऊपर वाला जो एक ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एरिया है, उसको आप कहते हो हेड सेक्शन ऑफ द इनेमल रॉड। दूसरा है टेल सेक्शन। ठीक है, वो आप देख रहे हो बड़ा थिन और नैरो सा है। ठीक है, ये टेल सेक्शन जहाँ एंड होता है ना, इसके नीचे दोबारा से एक और रॉड आ जाता है। रॉड का हेड वाला, इनेमल रॉड का हेड वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इनेमल रॉड क्यों कहते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर की लेंथ देखें इसको लॉन्गिट्यूडनली काट के, तो आपको पूरी इसकी लेंथ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आएगी। ठीक है, अब होता यही है कि इनेमल रॉड के हेड वाली पोजीशन में और इनेमल रॉड की जो टेल वाली पोजीशन है वहां पे इनेमल क्रिस्टलाइट्स की पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, now this is where you will understand the difference between an enamel rod and an interrod। तो अब क्या होता है, राइट साइड के ऊपर एक इमेज है जिसमें से आपको दिखा रहे हैं कि एमिलोब्लास्ट है। एमिलोब्लास्ट के जो टोम्स प्रोसेस है वहां से एनामल मैट्रिक्स सिक्रीट होती है। और वो सिक्रीट किस तरह से होती है, इसी तरह से कि पहले एक लेयर इनेमल रॉड की आ जाती है, फिर उसके ऊपर इन साथ जो आ जाता है इंटररॉड ले होता है, फिर इसी तरह से रॉड इंटररॉड। सो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल विद इन द इनेमल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपने देखने की ये चीज है कि इनेमल रॉड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ द एमिलोब्लास्ट। इट इज ऑल्सो रिटन इन बुक एज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, इंटर रॉड की क्या जो है वो ओरिएंटेशन है, दैट इज perpendicular to the rod structure. So this is how the enamel matrix is basically
laid down, and this is how the crystals can be seen in raw in form of rod and interrod. ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव लेयर्स की फॉर्म में इनेमल रॉड और इंटर रॉड की जो मैट्रिक्स है वो सिक्रीट होती है. एंड देयर इज वेरी फाइन डिमार्केशन और अ फाइन शीट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन रॉड एंड इंटर रॉड. उसको आप कहते हो, ठीक है, रॉड शीथ आ जाती है. ठीक है, और द ठीक है, दैट इज बेसिकली आल्सो नोन एज द शीथ दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रॉड एंड द इंटर रॉड स्ट्रक्चर. सो इस तरह से इनेमल मैट्रिक्स सिक्रीट होती है. अब इसमें होता क्या है कि जो रॉड वाला सेक्शन है वो चूंकि दैट इज मोर पैरेलल, तो वो क्या होता है, दिस इज बेसिकली द सेक्शन दैट इज रेजिस्टेंट टू एसिड एक्सपोजर. ठीक है, और जो इंटर रॉड वाला सेक्शन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द टेल एंड ऑफ द इनेमल. ठीक है, रॉड स्ट्रक्चर दैट इज उनकी वहाँ पे ओरिएंटेशन क्योंकि डिफरेंट होती है, इसलिए वो एसिड डिसोल्यूशन वहाँ पे कॉज कर देता है. So this is how the basic functional unit, the enamel rod and interrod, they basically look like in an enamel structure. बाकी इसके कुछ और भी important structures होते हैं. ठीक है, जैसे स्ट्राया ऑफ रेट्जियस और क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं, वो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं. ठीक है, और हंटर श्रैगर बैंड होते हैं. ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, बाकी इनकी डिटेल आपने वो इस चैप्टर में नहीं पढ़नी. ठीक है, so these are some of the very important structures that you need to know. ठीक है, उनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए. इस चैप्टर में सिर्फ आपके लिए रेलेवेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है रॉड, इंटररॉड, इनेमल, और उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है विद इन द इनेमल स्ट्रक्चर. सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप इनेमल को देख सकते हो, उसका कट सेक्शन एसिड ट्रीटमेंट के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर. ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको मैंने बताया कि इनेमल रॉड जो हैं दे आर हेक्सागोनल इन शेप. अब वो जो हेक्सागोनल शेप है ना, वो जिस जिस तरह से इनेमल का स्ट्रक्चर मैच्योर होता जाता है ना, वो हेक्सागोनल से रफली हेक्सागोनल स्टेज में जाना शुरू हो जाता है. अब रफ हेक्सागोनल स्टेज क्यों आ जाती है, क्योंकि जब एडजेसेंट, आपको पता है जो इनेमल रॉड स्ट्रक्चर होता है वो आपस में बड़ा क्लोजली पैक्ड होता है. ठीक है, तो जब क्लोजली पैक्ड होता है ना, तो वो क्या करता है कि एक दूसरे के जो साथ जो इनेमल रॉड पड़े हुए हैं वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप एग्जैक्ट हेक्सागोनल नहीं रहती. ठीक है, सो नाउ यू कम टू द डेंटिन. ये भी हमने पढ़ लिया था, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कवर्स द बल्क ऑफ द टूथ. और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी था रिगार्डिंग प्री डेंटिन और मेंटल डेंटिन. ठीक है, उसमें आपको मैंने ये बताया था कि प्री डेंटिन जो होता है that is a layer of the dentine that is first laid down and it is unmineralized. ठीक है, that is basically the organic matrix of the dentine that is laid down, उसको आप प्री डेंटिन कहते हो. मेंटल डेंटिन जो होता है that is the first dentine that is formed completely organic matrix plus mineral content. ठीक है, ऑल्दो के बाकी जो डेंटिन की टाइप्स होती हैं जैसे सर्कमपल्पल सेकेंडरी के मुकाबले में मेंटल डेंटिन की मिनरलाइजेशन कम होती है, बट एज कंपेयर टू द प्री डेंटिन इट इज मिनरलाइज्ड. ठीक है, तो दैट मेंटल डेंटिन इज द डेंटिन दैट इज द फर्स्ट डेंटिन फॉर्म्ड that includes both collagen matrix and the mineralized content. Pre-dentine होती है, it is totally the unmineralized matrix that is first laid down during the development. ये उसके different sections हैं different types of dentine के. ठीक है, दूसरा जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि mental dentine is the type of dentine that is present immediately under the crown. ठीक है, और प्री डेंटिन जो है वो आपको पता है कि पल्प के अराउंड जो ओडोंटोब्लास्ट सेल की एक लेयर होती है वहां से डेंटिन ले हो रहा होता है. ठीक है, तो वहां पे बेसिकली प्री डेंटिन होगा, वो मैच्योर हो के इसी तरह से ओक्लूजल डायरेक्शन में या कस्प वाले सेक्शन में मूव करता जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनेमल दैट द मेंटल डेंटिन इट इज मिनरलाइज्ड and it's present just below the enamel. ठीक है, सर्कमपल्पल है, फिर सेकेंडरी डेंटिन है. ठीक है, ये जो सारे डेंटिन है सर्कमपल्पल, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये इस तरह से इनकी लेयर्स पड़ी होती हैं आफ्टर द मेंटल डेंटिन. बट दीज टाइप्स ऑफ डेंटिन दे आर मोर मिनरलाइज्ड देन द मेंटल डेंटिन. मेंटल डेंटिन इज लेस मिनरलाइज्ड.
ठीक है, फिर हमने पल्प भी पढ़ा था, इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए। ठीक है, 5 डिफरेंट फंक्शंस, वेरी जनरल स्टफ दिस इज। ठीक है, इस तरह से आपको बताया था कि हिस्टोलॉजी में जो पल्प होती है उसके अराउंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आप देख रहे हो अरेंज हुए में। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक। देन वी एंडेड अप एट द पेरियोडोंशियम। पेरियोडोंशियम में आपने सिर्फ बेसिक उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट आर फाउंड बिटवीन द टूथ एज वेल एज द alveolar bone। ठीक है, वन एंड ऑफ देम इज अटैच्ड और embedded in the bone, the other is embedded in the cementum of the root। ठीक है, फिर ये आपको पता है दे आर 5 रोप लाइक स्ट्रक्चर। फिर आपको उसके फंक्शन पता होने चाहिए क्या होते हैं। सपोर्टिव फंक्शन है, ठीक है, रीमॉडलिंग में हेल्प करता है, शॉक एब्जॉर्ब करेगा जब भी किसी किस्म का टूथ के ऊपर प्रेशर आएगा। फिर एक फंक्शन सेंसेशन वाला होता है, सेंसरी फंक्शन है इसका। ठीक है, इसके एंड्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर इमीडिएटली अटैच्ड टू द blood and nerve vessels। ठीक है, so any sort of pressure that you feel in your tooth, that is because when that pressure is applied on the tooth surface, that is perceived by the receptors present in the PDL। वहाँ से वो सिग्नल जाते हैं थ्रू योर नर्व टू द ब्रेन। फिर आपकी बॉडी उसके सामने आपको वो चीज़ फीलिंग ऑफ प्रेशर और पेन वो फील होती है। So this is how the sensory function of the periodontal ligament it works। Then we have another hard tissue that is present around the tooth, that is known as cementum, and it is defined as a mineralized tissue or a hard tissue। ठीक है, avascular, that covers the root of the teeth। It covers and interlocks with the dentine। ठीक है, because this is covering the root of the tooth। और आपको पता है रूट वाले सेक्शन में डेंटिन भी है। So basically the collagen fibers of the cementum, they are interlocked with the collagen fibers of the dentine in the root section। ठीक है, दूसरा आपको कनेक्टिव टिश्यू फॉर न्यू स्टूडेंट्स में दोबारा से बता देता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू तमाम उन स्ट्रक्चर्स कहते हैं दैट आर बेसिकली कनेक्टिंग टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस केस में सिमेंटम को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तरफ ये बोन से अटैच है, दूसरी तरफ इट इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है, इसी तरह से पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं बिकॉज दे आर connecting the alveolar bone and the cementum। So this is why these structures, they are known as the hard tissues। And then we come to the cells that play a role in the development of cementum, they are known as cementoblasts। जिस तरह से आपके डेंटिन या बोन में होता है कि जी उसकी कोलेजन मैट्रिक्स सिक्रीट होती है, उसके बाद उसकी मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन, सेम गोज ऑन विद इन द केस ऑफ सीमेंटम। ठीक है, इनकी सिर्फ जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे डेंटिन में आपको बताया था 67% इनऑर्गेनिक और मिनरलाइज्ड कंटेंट, 33% इज द ऑर्गेनिक कंटेंट। सीमेंटम में क्या होता है? आई थिंक इट्स अबाउट 55%, आई थिंक इट इज मिनरलाइज्ड एंड अबाउट 45 इज अनमिनरलाइज्ड या ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होती। ठीक है, and then we come to the different types that we can observe in different section of the tooth। ठीक है, सीमेंटम में इसकी टाइप्स डिटेल में बताई हुई है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आपने ये जो इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं सेलुलर एंड ए सेलुलर डेंटि सीमेंटम, उनको याद रखना है। ठीक है, तो द सेलुलर सीमेंटम, दिस इज सीमेंटम दैट इज प्रेजेंट often in the apical portion of the root, and this is also known as the primary cementum। सेकेंडरी सीमेंटम कहते हैं ए सेलुलर सीमेंटम को, दैट इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द tooth। So these are the basic two types that you need to remember for this chapter। Then we have another important component that is the oral mucosa। ठीक है,
अब आप अपनी ओरल कैविटी में देखें कि आपके चीक वाला सेक्शन, आपके लिप वाला जो एरिया है, ठीक है, इवन द एरिया दैट इज जस्ट बिलो योर टीथ, ठीक है, दैट इज द जिंजवा, ठीक है, आपका हार्ड पैलेट, आपका सॉफ्ट पैलेट, टंग का सरफेस, ऑल दीज आर द components ऑफ द ओरल म्यूकोजा। ठीक है, तो व्हाट हाउ कैन यू डिफाइन एन ओरल म्यूकोजा? द म्यूकोजल मेम्ब्रेन lining the inner side of the mouth and has these two basic components: the epithelium that is basically covering the surface, and the second layer that is known as the lamina propria that is connecting the adjacent structures. मेन इनके functions क्या है? It is lining, protecting, providing mobility to the cheek. These are the general functions of the oral mucosa. And generally, when observed under histology or under the microscope, you can see these three different types of it. The masticatory mucosa, the mucosa that is covering the gingiva and the hard palate. Then you have the specialized mucosa that is covering surface of tongue mucosa immediately surrounding the tooth and gums. ठीक है? And then the third type of oral mucosa is the lining mucosa that is covering the soft palate, ventral surface of tongue, floor of mouth. ठीक है? अब ये एरियाज आप देखें कि लाइनिंग म्यूकोजा में जितने भी उसने एरियाज लिखे हुए हैं, यहाँ के आप देखोगे कि इधर का जो म्यूकोजा है दैट इज slightly loose or it is movable as compared to the mucosa that is covering the hard palate. ठीक है, वो क्या होता है? दैट इज इमूवेबल। इसमें डिफरेंट इसलिए होता है कि दिस लाइनिंग म्यूकोजा इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, and the lining mucosa actually doesn't consist of a pigment that is known as keratin, ठीक है, whereas the hard the region where the uh, mucosa is immovable that consists of keratin, ठीक है, this is the basic difference, ठीक है जी। Then we come to an image that is showing you different parts of the mucosa, ठीक है, you can just go through this picture in a hurry. ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपकी बुक में भी मेंशन है। जो मेन एक चीज़ है मैंने आपको बतानी है, दैट इज़ द म्यूकोसा प्रेजेंट अराउंड योर टूथ, दैट इज़ द जिंजिवा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ इट फेसिंग द मैस्टिकेटरी म्यूकोसा एंड द पार्ट दैट फॉर्म्स द पेरियोडोंशियम, ठीक है। And then the last point says that the junction of oral mucosa and tooth is permeable, due to which it is susceptible to inflammation. अब ये इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है कि ये अगर आप इमेज देखो, ठीक है, तो ऊपर वाली इसकी लेबलिंग छोड़ दें, जो नीचे वाली जो लेबलिंग है वो आपसे ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। एक उसने लेबल किया हुआ है फ्री जिंजिवल मार्जिन, ठीक है, क्योंकि आपके दांत जहाँ पे अटैच हुआ होता है बिल्कुल उसके साथ जो गम वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज द फ्री जिंजिवल मार्जिन। इसको फ्री जिंजिवल मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 to 3 मिलीमीटर जो यहाँ पे गम वाला एरिया होता है दैट इज नॉट अटैच टू योर टूथ। 2 to 3 मिलीमीटर जब आप नीचे जाते हैं तो वहां से स्टार्ट होता है आपका अटैच्ड जिंजिवा, ठीक है। And then you have a structure labeled as the alveolar mucosa. Alveolar mucosa क्यों कहते हैं? Because this is covering the alveolar bone or the alveolus, ठीक है। Then you have a labeling known as the mucogingival junction, ठीक है। ये जंक्शन कहाँ पे होता है? That is between your gingiva and the alveolar mucosa. This is a junction or a what you can call a boundary between the alveolar mucosa and the gum or the gingiva. This is known as the mucogingival
जिंजिवल जंक्शन। इसमें आप देखेंगे जहाँ पे म्यूकोजिंजिवल जंक्शन है और उससे ऊपर जो जिंजिवा वाला सेक्शन है दैट इज इमूवेबल। जो एल्वियोलर म्यूकोजा वाला सेक्शन है दैट इज स्लाइटली मूवेबल। तो इस पिक्चर में ये चीज़ें जो हैं आपसे रेलेवेंट है। ठीक है, बाकी इसकी जो पिक्चर दी हुई है जहाँ पे 3 टाइप्स भी दी हुई हैं उसमें इसकी डायग्राम्स आप ज़रूर देख लेना। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके जो लिप वाला एरिया है और जो टूथ रीजन है उसमें जो एपिथेलियम है और कनेक्टिव टिश्यू है उसमें डिफरेंस क्या होता है। Then we come to another important structure that is present in your oral cavity. These are the salivary gland, basically the exocrine glands that secrete the saliva through system of ducts. Exocrine glands क्यों कहते हैं? Because they secrete their secretion into the external environment or externally rather than within the body. This is why they are known as the exocrine glands. Then the secretion that they secrete is the saliva. So what is saliva? It is a complex fluid composed of water, mucus, proteins, mineral salts, and all the different types of digestive enzymes. ठीक है जी. So this is how you can define salivary glands and also the saliva. This is how it's going to be. So next you come to different types of saliva, sorry, the salivary glands that are present. ठीक है, उससे पहले इसका फंक्शन देख लें. What the saliva is going to do, it's going to keep your mouth moist, facilitate कर. अब जितना आपका ओरल कैविटी जो है मॉइस्ट होती है उतना ही आपको ईज होता है इन स्पीकिंग. ठीक है, एंड इट कैन लुब्रिकेट योर फूड, solvent for food, and it also has some enzymes or proteins that have their antimicrobial activity. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल फंक्शंस हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ोगे इन चैप्टर ऑफ salivary glands. ठीक है, you have the different types of salivary glands, major and minor. Major क्यों कहते हैं? Because they secrete the most of the percent of your saliva. Then you have the minor salivary glands, ठीक है, present in the labial, buccal, lingual and palatine region. ठीक है जी. Then you come to different components of the salivary gland. ठीक है, एक बड़े अहम इसका जो कंपोनेंट है वो होता है इसका सारा जो डक्टल सिस्टम है, जिसमें सलाइवा की बनता कहाँ है और फिर किस तरह की चैनल से होके वो थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है. तो ये कंपोनेंट्स आपके लिए पता होना आपको बड़ा ज़रूरी है. इट्स ए ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर. ईच ग्रेप इज बेसिकली एसिनस और द टर्मिनल सिक्रीटरी यूनिट. अब ये एसिनस होता है बेसिकली वो स्ट्रक्चर जहाँ पे सलाइवा ने बनना है. ठीक है, इस एसिनस में 3 डिफरेंट टाइप्स सेल्स होते हैं. एसिनर सेल्स दैट आर सीरस, म्यूकस एंड म्यूकोसीरस. ठीक है, म्यूकस सेल्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक थिक और गमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं दैट हेल्प्स टू लुब्रिकेट द होल ओरल म्यूकोजा. ठीक है, फिर सीरस जो है वो क्या करते हैं, वो वाटर कंटेंट सिक्रीट करते हैं. फिर एक इसके होती है टाइप दैट इज म्यूकोसीरस दैट सिक्रीट्स अ मिक्सचर ऑफ म्यूकस एंड थिक एंड थिन सलाइवा. ठीक है, तो बेसिक जो इसका सिक्रीटरी यूनिट होता है जहाँ पे बेसिकली सलाइवा की फॉर्मेशन होती है दैट इज द एसिनस, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उसके बाद जब ये सलाइवा बन जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिनर सेल्स में, उसके बाद सबसे पहले ये आता है इनटू द इंटरकलेटेड डक्ट्स. ठीक है, इंटरकलेटेड डक्ट्स से जाता है सेक्रेटरी डक्ट्स में, एंड देन इट इज गोइंग टू बी थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट इट इज सेक्रेटेड इनटू द
oral cavity. Now for this chapter, this is the basic idea you need to have कि saliva बन किधर रहा है और कौन सी duct से होके किस सीक्वेंस से आके ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है। अब ये इंटरकलेटेड डक्ट्स होती क्या हैं, क्या सेल्स होते हैं, ठीक है, इन तीनों डक्ट्स के, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, यू डोंट नीड टू नो दीज थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू नो। एसिनर सेल्स में बेसिकली जो सलाइवा के कंपोनेंट्स हैं वो बनते हैं और फिर वो इंटरकलेटेड डक्ट में स्ट्राइटेड डक्ट एंड देन थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट दे कम इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। ये भी पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ आप ये सीक्वेंस याद रखो, ठीक है। पेरेन्काइमा और जो भी सेल टाइप्स होते हैं, दीज आर मोर डिटेल्स दैट यू विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ salivary glands, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कि आपको स्फेरिकल और ट्यूबुलर सिक्रीटरी एंड पीस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सलाइवा ने बनना है, फिर इंटरकैलेटेड डक्ट्स में जाना है, then into the striated ducts, and then through the main excretory duct it is going to come into the oral cavity, ठीक है। Then you have another very important structure that is present around the oral region that is known as the temporomandibular joint, जिसका कि बड़ा एक अहम रोल होता है in providing opening and closing of your mouth and also different movement of your jaw। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है, किस टाइप का जॉइंट है, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इट इज अ जॉइंट दैट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेज एंड दैट कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। दिस इज द बेसिक हाउ दिस साइनोवियल जॉइंट कैन बी डिफाइंड। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अगर आप जनरल एनाटॉमी में पढ़ोगे तो आपको उधर साइनोवियल जॉइंट की भी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। और आगे हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ना है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स के ऊपर, जिसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं और टीएमजे के कंपोनेंट्स की भी डिटेल पढ़ेंगे। फिल वक्त इसमें आपने क्या याद रखना है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट व्हाट इट इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ द condylar process of mandible with glenoid fossa of the temporal bone, ठीक है। ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कौन से टाइप का जॉइंट है, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट। क्या होता है साइनोवियल जॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्टिलेज दैट इज कवर्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। और जो टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है दैट इज कवरिंग the articulating surface that is fibrous joint, not the fibrous cartilage, not the hyaline cartilage, ठीक है। तो ये इसके सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको एरो हेड दिखाने का मकसद है कि ये बेसिकली जो कनकेव स्ट्रक्चर होता है ना टेम्पोरल बोन का, दिस इज नोन एज द glenoid fossa, the mandibular fossa where the condyle of mandible is going to articulate, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर के दरमियान जो एक डिस्क है ऑफ वाइट, ठीक है, और ग्रे कलर दैट इज द आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क के जो ऊपर वाला एरिया दैट इज सुपीरियर जॉइंट कैविटी, अंडर दैट इज द inferior joint cavity, और ये joint cavity this is filled by a synovial fluid that basically assists the movement of this joint, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपने फिल वक्त याद रखने, इसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, we'll discuss it later in detail। नेक्स्ट ये आपकी बुक के लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग हाउ द डिफरेंट हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। उनका एक उसने जनरल सा आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट टिश्यूज हैं प्रेजेंट इन योर ओरल कैविटी वो कौन कौन से हैं। ये चार होते हैं, बोन, डेंटिन, सीमेंटम एंड इनेमल। अब इसमें से आपको पता है कि जो इनेमल होता है दैट डज नॉट हैज कोलेजन, ठीक है, और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी आपको पता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। उसकी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी बड़ी एक डिफरेंट तरीके से बनती है, उसकी मिनरलाइजेशन भी उसी हिसाब से हो रही है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड देन secretion of the mineral content, ठीक है। इन केस ऑफ बोन, डेंटिन एंड सीमेंटम, ठीक है,
क्या होता है कि इट कंसिस्ट, इसमें पहले जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होती है दैट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ द कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, followed by the non-collagenous matrix, ठीक है. So these are the basically three different types of connective tissues that first of all involve the lay down of the collagen matrix that is later on mineralized. ठीक है, अब ये सारा जनरल एक प्रोसेस है किस तरह से होता है, ठीक है, कौन कौन सी इसकी थ्योरीज हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है. तो इनेमल का तो आपने पढ़ लिया कि जो उसकी मैट्रिक्स सिक्रीट होनी है वो किस तरह से है कि द अमीलोब्लास्ट आर गोइंग टू सिक्रीट द रॉड एंड इंटररॉड इनेमल, ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ बोन डेंटिन एंड सीमेंटम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वेरियस मिनरल प्रोटीन्स अट्रैक्ट एंड ऑर्गेनाइज द कैल्शियम फॉस्फेट आयन, ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट इतना इससे रेलेवेंट नहीं है. जो अब इसमें होता क्या है कि वंस in case of bone dentin and cementum what is going to happen कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था द कोलेजनस मैट्रिक्स एंड द नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स दे आर सिक्रीटेड, ठीक है. वो पहले एक प्रॉपर एक मैशवर्क बनता है, ठीक है, एंड दैट देन कंटिन्यूज एंड दैट इज देन फॉलोड बाय द मिनरलाइजेशन, ठीक है. और ये जो मिनरलाइजेशन होती है स्ट्रक्चर की दैट इज मोस्टली इनिशिएटेड और कॉज्ड बाय द नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है. So this is where the non-collagenous matrix protein is important that they initiate the mineralization around the collagen fibers, ठीक है. अब मिनरल कंटेंट मेनली सारे के सारे जो हार्ड टिश्यूज हैं उनमें क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट that basically consists of calcium and phosphate as the basic component and then the hydroxyl group, ठीक है. ये इसका केमिकल फार्मूला CH10PO4 whole 6 OH twice. This is the basic formula for the calcium hydroxyapatite crystal. It is hexagonal in shape, packed together to form a crystal lattice structure. Lattice structure होता है highly organized structure in which the crystals are packed together in a three-dimensional structure. जैसे कि आप अगर एक क्यूब देखें, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है पूरा जो क्यूब होता है उसमें अगर आप उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. इसी तरह का ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि मल्टीपल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं तो रेपिटेशन जब होती है मुसलसल एडजेसेंट क्रिस्टल्स की तो उसकी वजह से साइज जो है और इवन जो शेप होती है क्रिस्टल की वो वेरी कर सकती. Then you have these three components of an apatite, the crystal interior, ठीक है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपको बारे में बताएगा कि कौन कौन से इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. देन यू हैव द क्रिस्टल सरफेस एंड देन द थर्ड इज द हाइड्रेशन शेल. हाइड्रेशन शेल बेसिकली क्या होता है, हाइड्रेशन आपको पता है, यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन इट रेफर्स टू द वाटर कंपोनेंट. तो शेल है तो बेसिकली इट इज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट or a layer of water around the crystal, ठीक है. नाउ व्हाट कैन हैपन विद इन द क्रिस्टल, आपको पता है कि कैल्शियम आयन भी है, हाइड्रोक्सिल आयन भी है और फॉस्फेट आयन भी है, ठीक है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ये जो आयन्स होते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्सिल आयन और फॉस्फेट आयन ये दूसरे आयन से रिप्लेस भी हो सकते हैं, ठीक है. तो उसने ये बताया हुआ कि कौन कौन से डिफरेंट आयन्स हैं वो कौन से जो एलिमेंट होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल में उसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट, ठीक है, कि मैग्नीशियम एंड सोडियम इट कैन सब्स्टिट्यूट द कैल्शियम पोजीशन. उसका बताने का मकसद ये है कि इवन इफ दीज टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट तो आपका जो
हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्ट्रक्चर है वो इतना डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर आप इसका फोर्थ पॉइंट देखें, द कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। नाउ इफ इन केस, अगर जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, if there is any sort of damage or if that calcium is replaced by carbonate, तो क्या होता है कि उसकी क्रिस्टल जो होते हैं, फर्ज कर लें जैसे इनेमल का हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, अगर उसमें आप कार्बोनेट आयन आ जाए कैल्शियम की जगह, तो that can cause the dissolution of the crystals that basically damages the enamel structure। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उसने एक और फ्लोराइड के बारे में लिखा हुआ है, इट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स। सो दिस इज एन आइन दैट यू वुड प्रेफर कि अगर इनेमल किसी भी वजह से वीक हो गया, यू वुड प्रेफर द एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड आइंस। ठीक है। तो क्या करता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को ज़्यादा स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेजोल्यूशन नहीं होती। अगर आप ये सारे आइंस देखो ना, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये अक्सर औकात अगर आप कोई भी टूथपेस्ट लें ना, तो इसी तरह के आयंस उसमें या इसी तरह के कंपाउंड लिखे होते हैं। ठीक है ना, सोडियम फ्लोराइड या कैल्शियम, ठीक है ना, इस तरह के उसने कंपोनेंट्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो इसलिए बेसिकली उसने लिखे होते हैं कि अगर किसी भी किस्म का आपका अगर किसी वजह से इनेमल वीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स हो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल या ज़्यादातर जो आपने सुना होगा, इवन टूथपेस्ट का जो एडवर्टीजमेंट भी होता है उसमें फ्लोराइड का बड़ा जिक्र आ रहा होता है। फ्लोराइड का इसलिए जिक्र होता है कि वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को, उसकी एक बड़ी छोटी सी जो मकदार होती है ना, वो आपके जो इनेमल हाइड्रोक्सी एपेटाइट है उसको स्टेबल कर लेता है। ठीक है, कैल्शियम के मुकाबले में अगर उसको कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, तो इट कैन एक्चुअली, or the hydroxyl group, it will actually stabilize the whole hydroxyapatite crystal, जिसकी वजह से आपका इनेमल डैमेज नहीं होता। ठीक है। so this is why you see different mostly these different types of compounds that are present in the toothpaste, वो बेसिकली आपके हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है उसको स्टेबल या स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। बट यू नेवर सी अ कार्बोनेट आयन because it causes the increase in solubility of the crystal। अब आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंट तरीक़ों से जिस तरह से इनेमल में डॉट इंटरॉड सिक्रीट होते हैं। ठीक है। बाकी जो है उस जो हार्ट टिश्यूज हैं, बोन सीमेंटम और डेंटिन, उनकी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स किस तरह से सिक्रीट होती है कि कोलेजन मैट्रिक्स, नॉन कोलेजनस प्रोटीन, और फिर नॉन कोलेजनस प्रोटीन जो है वो क्या इनिशिएट करवा देते हैं उसकी मिनरलाइजेशन। तो अब यहाँ पे मिनरलाइजेशन किस किस तरह से होती है हार्ट टिश्यूज की, यहाँ पे दो डिफरेंट थ्योरीज हैं इसकी। ठीक है। वन ऑफ देम इज द मिनरलाइजेशन थ्रू द मैट्रिक्स वेसिकल्स। So according to this theory, what is going to happen? Small membrane-bounded organelles bud up from the cell that form the unit in the organic matrix. Now, what is going to happen? First कर लें, enamel है, dentin है, sorry not enamel but bone, dentin and cementum। उनकी organic matrix में आपको पता है it consists of non-collagenous proteins। उन प्रोटीन्स के ऊपर से क्या करते हैं कि या उस प्रोटीन या उस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि अपने अंदर से कुछ वेसिकल्स सिक्रीट करते हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इन वेसिकल प्रोटीन्स में ये सारे एंजाइम होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन। अब ये क्या करते हैं कि ये जब मैट्रिक्स प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाएगा, तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के उन कंपोनेंट्स की डिग्रेडेशन करेगा जिसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट आयन जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है। अब जैसे कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, जो कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर ऑस्टियोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से फॉस्फेट आयन को आइसोलेट करके उनकी डेपोजिशन करवा देता है। कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट और कैल्शियम की डेपोजिशन करवा देगा। सो दिस इज हाउ these matrix vesicles through these different types of enzymes in
कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो होते हैं इनको रिलीज करवाते हैं, और जैसे ही वो रिलीज होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो जितने ज़्यादा वो रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा मिनरलाइजेशन या मिनरल डेपोजिशन होती है। ठीक है, सो this this is how the deposition occurs, and for this deposition the ionic phospholipids are very important. ये जो phospholipids होते हैं, these basically join with the calcium and phosphate to form the to basically assist in formation of the mineral content. ठीक है, so ये basic concept है mineralization through the matrix physical। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ बोन सीमेंटम और डेंटिन क्या होते हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से once the collagen matrix is laid, the non-collagenous proteins they secrete this mineralization। तो जो सेकंड थ्योरी है दैट इज द, इसको हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन भी कहते हैं और कोलेजन बेस्ड कैल्सिफाइड टिश्यू फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन डेपोजिशन ऑफ एपेटाइट क्रिस्टल इज catalyzed by specific atomic group that are either present within the collagen fibrils or they are present between the space of the collagen fibers। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से क्या चीज़ है कि ये अगर इमेज आप देखें तो ये बेसिकली वो बता रहा है कि किस तरह से कोलेजन फाइब्रिल्स जो हैं सारे मिल के अरेंज होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्फ असेंबली से नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से कि कोलेजन फाइब्रिल जो हैं वो अरेंज होकर पूरी एक कोलेजनस मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और इनके दरमियान में जो ये वाली स्पेस है यहाँ पे मिनरल डेपोजिशन होगी। ठीक है, सो इस थ्योरी में अभी जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है वो ये है कि द साइंटिस्ट आर स्टिल लुकिंग फॉर द फैक्ट कि जो मिनरलाइजेशन इनिशिएट होती है बाय द नॉन कोलेजनस प्रोटीन, उसकी सिग्नलिंग या तो इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में से होती है, या फिर वो जो मॉलिक्यूल्स जो कि मिनरलाइजेशन इनिशिएट करवाते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन दिस collagen fibril structure। But the thing is that once the collagen fibrils they are arranged in this pattern, जो कि सेल्फ असेंबली के नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बंडल फॉर्म अरेंजमेंट, उसके बाद इन स्पेसेस में जो है वो मिनरल कंटेंट डिपॉजिट हो जाता है, एंड दिस इज हाउ द कोलेजन मैट्रिक्स इज देन मिनरलाइज्ड। ठीक है, एंड दिस बेसिकली अकर्स इन केस ऑफ बोन सीमेंटम एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेंटिन। देन यू कम टू द हार्ट टिश्यू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन अक्सर जो स्ट्रक्चर हैं वो तब भी होती है व्हेन देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि बोन रिमॉडलिंग है। ठीक है, आपको बताया था कि बोन रिमॉडलिंग में क्या होता है कि व्हेन देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बोन, तो जिस साइड के ऊपर प्रेशर लग रहा है वहां से बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता है कि देयर इज ऑन द ऑपोजिट साइड देयर इज डेपोजिशन ऑफ द बोन इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द स्ट्रेंथ एज वेल एज द। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ द हार्ट टिश्यू डिग्रेडेशन अकर्स। डिग्रेडेशन क्या होती है कि यू विल हैव इन केस ऑफ बोन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आएंगे तो वो उस प्रेशर वाली एरिया को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रिजॉर्प्शन गोज ऑन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रिजॉर्प्शन अंडर इरप्टिव मूवमेंट्स। इरप्टिव मूवमेंट्स में भी आपको पता है जब दांत ने बाहर आना होता है बोनी क्रिप्ट में से, इट्स गोइंग टू अप्लाई प्रेशर टू ऑन द बोन, तो वहां से बोन रिजॉर्प्शन होगी, और जो रूट वाला सेक्शन एरिया होता है वहाँ पे सीमेंटम और बोन की डेपोजिशन होती है। सो दिस इज हाउ द हार्ट टिश्यू not only degrades but it is also formed as a result of remodeling। So this is the end of this topic। So all you need to know is all the general stuff I have told you। बहुत ज़्यादा किसी की डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे जो
मिनरलाइजेशन और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है. दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो, जो जितना कि मेरे लेक्चर्स में है. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क. और जो टेस्ट है आपका वो मॉर्फोलॉजी के 2 चैप्टर हैं और हिस्टोलॉजी का जो है वो सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 1. ठीक है. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी नाउ. अभी पूछ लें या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? मिनरलाइजेशन जो है ना बच्चे, उसकी 2 थ्योरीज आपने याद रखनी है. ठीक है जी. मिनरलाइजेशन 2 तरह से होती है. एक तो थ्रू मैट्रिक्स वेसिकल्स. मैट्रिक्स वेसिकल्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर किसी भी हार्ट टिश्यू की ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ले हो गई है तो उसमें से सेल्स क्या करते हैं, स्मॉल वेसिकल्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. ठीक है. तो वो एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जाके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को डिग्रेड करते हैं जिसमें कि कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज हो रहा होता है. ठीक है. अब वो जब कंपोनेंट डिग्रेड होते हैं तो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आ जाता है. ठीक है. तो इनकी कॉम्बिनेशन किस तरह होती है, थ्रू एनायनिक फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है. ये फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, दे असिस्ट इन द deposition of the degraded calcium and phosphate. So this is one of the theories. Second theory ये है कि once the collagen matrix is formed, ठीक है, वो कोलेजन मैट्रिक्स क्या होती है, डिफरेंट जब कोलेजन फाइब्रिल्स, ठीक है, इस तरह की पैक्ड फॉर्म में ले हो जाते हैं, उसके बाद जो मिनरल है दैट इज सिक्रेटेड बिटवीन दीज स्पेसेस. किस तरह से सिक्रीट होता है, आइदर देयर इज सिग्नलिंग from within these fibrils or from the external environment. ठीक है. So there is slight conspiracy in the collagen matrix or the heterogeneous nucleation theory. ठीक है. कि once the collagen matrix is formed there is signaling from these collagen fibrils that causes the deposition of the mineral content. स्कैफोल्डिंग रोल जो भी है, ये कहाँ पे पढ़ा है आपने स्कैफोल्डिंग रोल? इसको बेशक आप छोड़ दो. डिपेंड करता है, जो जितने भी स्ट्रक्चर्स में रीमॉडलिंग होती है ना, जैसे कि बोन है, इवन डेंटिन भी है. डेंटिन की खैर रीमॉडलिंग नहीं, उसका जब डैमेज होगा तो सिर्फ तब उसकी डिग्रेडेशन होगी. ठीक है. तो ज़्यादातर जो डिग्रेडेशन होती है दैट इज अकरिंग इन बोन एज अ रिजल्ट ऑफ रीमॉडलिंग. ठीक है. सो देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट. ये बुक में भी आप देखेंगे उसने ज़्यादातर जो जिक्र किया हुआ है वो बोन का किया हुआ है. अदर स्ट्रक्चर के केस में बहुत कम होती है डिग्रेडेशन. ज़्यादातर जो डिग्रेडेशन हो रही है दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ remodeling of the tissues. So that's the end of the time for today. Any questions regarding this you can ask me even in the WhatsApp group. Ask me these questions in the group, I'll answer. ये कोई इतने खास इम्पोर्टेंट है नहीं, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या याद रखना है. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन जस्ट आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. द टाइम इज ओवर. थैंक यू.